सिलसिला रूबरू ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਆਦਾਬ। ਸਰੋਤਿਓ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਕਲੀਫ, ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਝੇਲਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆੜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੂਬਰੂ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਈਕ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਘਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾਰੀ। ਤੋਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਘਵਿੰਦਰ ਤਿਵਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਘਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोतागणों को सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम। ਤਿਵਾਰੀ ਸਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੀਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਪਿੰਡ ਬਦਰਾਵ ਤਿਵਾਰੀਆਮ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਆ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਨੇ ਹੋ। ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਰੀਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜੁਰਤ किस तरह हुई? जैसा कि आपने कहा, मैं रीवा जिले के एक बहुत ही छोटे पिंड से हूँ, बदलाव तिवरियान। मैंने अपना प्रारंभिक पढ़ाई 5वीं तक गांव से ही पढ़ी। इसके बाद 6वीं, 7वीं, 8वीं की पढ़ाई में स्कूल जाने के लिए मुझे 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना पड़ता था। फिर 9वीं, 10वीं, 11वीं की पढ़ाई करने के लिए जो स्कूल सबसे नजदीक, हमारे गाँव के सबसे नजदीक स्कूल था, वो 6 किलोमीटर दूर था। तो 12 किलोमीटर प्रतिदिन चल करके मैंने 11वीं तक पढ़ाई की। इसके बाद ग्रेजुएशन में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर है रीवा, वहां से किया और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मैं सागर विश्वविद्यालय 1978 में गया। जी, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ 200 ਮੀਟਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ पैदल चलते सी? 12 किलोमीटर पैदल चला। साइकिल उस समय मेरे परिवार में नहीं थी। मैं अपनी पीढ़ी का सबसे बड़ा था। मेरे पिताजी 3 भाई, मेरे पिताजी सबसे बड़े और मैं अपनी पीढ़ी में सबसे बड़ा था। और मेरे दादाजी किसान थे, मेरे पिताजी शिक्षक थे। लेकिन उस समय हमारे परिवार की प्राथमिकताएं दूसरी थी, इसलिए उन्होंने साइकिल खरीदने में पैसा खर्च करना उचित नहीं समझा और ये समझे कि यदि मैं चलूंगा तो मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा बनेगा। और जैसा कि गाँव में होता है, दूध घी काफी होता था, खूब दूध घी खाता था और चलने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। आपने बीच में बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि इतना लंबा सफर और यहाँ तक पहुँचने के लिए किसकी प्रेरणा थी। तो जैसा मैं कहा कि मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे, मेरे बड़े चाचा ग्राम सेवक थे एग्रीकल्चर विभाग में, छोटे चाचा पढ़ते थे, वो मुझसे 6-7 वर्ष बड़े थे। पिताजी मेरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में शिक्षक थे। तो मेरा पूरा बचपन 11वीं तक मैं अपने दादाजी के साथ था और वो ग्राम प्रमुख थे और उन्हीं की प्रेरणा से मुझ में जो भी संस्कार आज विकसित हुए हैं, ये उनकी प्रेरणा है, उनका आशीर्वाद है। और हम जो भी मैं आज जहाँ तक भी पहुंचा हूँ, ये मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है। वो उस अवस्था में नहीं थे कि मुझे हाई एजुकेशन के लिए कुछ गाइडेंस दे पाते, उनका एक्सपोजर उतना नहीं था, लेकिन उनका प्यार और उनका संपूर्ण आशीर्वाद है जिसका प्रतिफल आज मुझे भगवान ने इस पंजाब की पवित्र भूमि, जहाँ पर 10 गुरु साहिबानों ने लगातार ज्ञान की गंगा बहा करके मानव समाज की उत्कृष्टता के लिए, उसको उच्चतम शिखर पर ले जाने के लिए जो ज्ञान का सृजन किया है, ऐसी पवित्र धरती पर जिसका श्रृंगार 5 पवित्र नदियां करती हैं, बल्कि 7 पवित्र नदियां पंजाब क्षेत्र सप्त सिंधु क्षेत्र में आता है। इसका अर्थ है कि जिस क्षेत्र को 7 नदियां श्रृंगार करती हैं और
और वहाँ में जो आज मानव सभ्यता हम देख रहे हैं, इन 7 नदियों की ही देन है कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ऐसी पवित्र धरती में मुझे मेरे पूर्वजों, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी, दादी माँ, सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे ऐसी पवित्र भूमि में आकर शिक्षा के क्षेत्र में मानव समाज की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਚ ਆਉਣਾ ਕੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾप्ति वाली जा रहे सी ये वाला सब्जेक्ट चुन के? मैं ग्रेजुएशन जब कर रहा था उस समय ग्रेजुएशन में 3 विषय लेने पड़ते थे और मेरा एक विषय था भू विज्ञान, अर्थ साइंस। इसको पढ़ने के बाद जब मैं इस विषय के साथ ग्रेजुएशन किया तो उस समय मेरे शिक्षकों ने बताया कि भू विज्ञान की देश में सबसे अच्छी पढ़ाई सागर विश्वविद्यालय में होती है। वहां पर अप्लाइड जियोलॉजी में 3 साल का पीजी प्रोग्राम एमटेक था। तो मेरे शिक्षक प्रोफेसर डीपी दुबे, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं सागर जाऊं और वहां पर अप्लाइड जियोलॉजी में एमटेक करूं, 3 साल का पीजी का कोर्स। और उसके बाद उनका कहना था कि इस कोर्स को करने के बाद मुझे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जियोलॉजिस्ट का पद मिल जाएगा, क्योंकि उस विभाग के सभी विद्यार्थी उन दिनों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में उनको जॉब मिल जाता था। मेरे परिवार का, मेरे पिताजी का, मेरे दादाजी का, मेरे चाचाओं का ये था कि मैं पढ़ करके और अच्छी नौकरी लूं। उनका केवल उद्देश्य इतना था। और जैसा कि मैं पहले बोला कि उनका एक्सपोजर इतना नहीं था कि वो मुझे बताते, गाइड करते कि अब ये करो, ये करो, ये करो। तो उनके आशीर्वाद के साथ, उनके संरक्षण में मैंने अपनी पढ़ाई के बारे में स्वयं अपना निर्णय लिया, जिसको आजकल अंग्रेजी की भाषा में बोलते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। स्वयं निश्चित करना कि हमें क्या पढ़ना है, आगे क्या बनना है। सर आज एक नवा क्षेत्र ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮਾਨਿਅਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਣੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੇ? तो ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ प्रोफेशन भी बन चुका है, एक पेशा भी बन चुका है। तो जदों ये गल्लां तुसीं सुनदे देखदे हो तो तुहाडी की प्रतिक्रिया हुंदी? देखिए, इसमें मेरी प्रतिक्रिया बहुत ही स्पष्ट है। आज जो हमारे युवाओं में जिस तरह की बेरोजगारी है, जिस तरह का हतोत्साहित है, वो सोचते हैं कि वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इनकी मूल वजह हम जिस तरह कि उनको ट्रेनिंग बचपन से देते हैं, हम बहुत ज्यादा प्रॉक्टरिंग करते हैं अपने बच्चों की, उनको बहुत ज्यादा अपने कंट्रोल में रखते हैं, बहुत ज्यादा उनको अपने गाइडेंस में रखते हैं। इसके फायदे भी हैं, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उनमें इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनने की सोच और उनमें जो कौशल होना चाहिए, एक स्वयं निर्णय लेने वाला, स्वयं विचार करके, स्वयं चीजों की एनालिसिस करके किस में क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। जब तक हम अपने युवाओं में इस तरह की क्षमता, स्वयं के सोचने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या हमारे पास बनी रहेगी। और इसी दृष्टि से हमें ये काउंसलिंग को भी देखना चाहिए। हम बहुत ज्यादा ट्यूटरिंग करते हैं, मेंटरिंग नहीं करते हैं। हमें उनको डिसीजन लेने में फैसिलिटेटर का कार्य करना है। वो स्वयं पढ़ें किस कोर्स का क्या एडवांटेज होने वाला है, उसका क्या फ्यूचर है, उसके बारे में वो स्वयं सुने, स्वयं सोचें और स्वयं निर्णय लें। तो उनमें सोचने की क्षमता का विकास होगा, निर्णय को भी लेने की क्षमता का उनमें विकास होगा। तो इस तरह से जो व्यक्तित्व निर्माण की बात जो हमारे गुरुकुलों में हुआ करती थी, शिक्षा का भी उद्देश्य यही है कि यदि उनमें हम स्वयं सीखने की क्षमता पैदा कर सके और वहां हम मेंटरिंग करें कि कैसे स्वयं सीखा जाता है। तो ये जिसको हम मेंटरिंग बोलते हैं, तो इस तरह की शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था हमें करनी है, प्राइमरी स्कूल से लेकर के हाई एजुकेशन तक, जिससे कि वो लाइफ लॉन्ग लर्नर बन सके। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि
बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਘੁਵਿੰਦਰ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਤੌਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਹਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਸੋ ਅਚਾਨਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬਬ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਉਹ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬਡ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ? मुझे जब अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल गया नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी का मिजोरम कैंपस का, तो जब मैं अपने परिवार वालों को बताया, अपने दादाजी को बताया, पिताजी को बताया, तो उनका कहना केवल इतना, उनको ये मालूम था कि ये बहुत दूर है और वहां जाने के लिए उन दिनों 4 दिन लगते थे, 5वें दिन पहुंचते। तो ये उनको सुन के बोले कि बहुत दूर जा रहे हो, क्या इतना दूर जा करके खुश रहोगे? मैं बोला बिल्कुल खुश रहूंगा। तो बोले ठीक है, तुम्हें जाना चाहते हो तो जाओ। जैसा कि मैं बताया कि अपने जनरेशन में मैं सबसे बड़ा था, पहला, और हमारे यहाँ किसी भी जनरेशन के पहले बेटे का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो उसको पैदा होने पर बहुत धूमधाम से उसका सेलिब्रेशन होता है, अभी भी हमारे यहाँ बरहू बोलते हैं। उसके बावजूद भी वो जब मैं बोला कि मुझे अच्छा लगेगा, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, आप मेरे ऊपर विश्वास करिए कि मैं कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सामंजस्य बना करके और मैं वहाँ अच्छी तरीके से रहूंगा, मैंने उनको ऐसा विश्वास दिलाया तो तैयार हो गए। जैसा मैं बताया कि 5वें दिन मैं वहाँ पहुंचता था, कई 3-4 जगह ट्रेन बदलनी पड़ती थी, फिर बस पकड़नी पड़ती थी। पहले बस से शुरू होते थे, रीवा से इलाहाबाद जाते थे। मिजोरम, जैसा हम सबको विदित है कि मिजोरम 2 देशों के बीच में छोटा सा प्रांत है। इसके पूर्व में म्यांमार है, जिसको हम पहले बर्मा के नाम से जानते थे, और पश्चिम में बांग्लादेश है और दक्षिण में भी बर्मा है। केवल उत्तर में वो असम से लगा हुआ है और थोड़ा भाग जो है मणिपुर और थोड़ा भाग त्रिपुरा का है। तो ये 2 देशों के बीच में है। ये ट्राइबल स्टेट है 100% और पूरा हिल्स है। और ये हमको लगता है कि भटिंडा और मुक्तसर साहिब, इन 2 जिलों का क्षेत्रफल आप मिला दें तो उतना बड़ा वो प्रांत है। जब मैं गया था उस समय वहाँ की जनसंख्या 7 लाख थी और अभी वहाँ की जनसंख्या 14 लाख है। बहुत छोटा सा प्रांत, बहुत ही खूबसूरत प्रांत है। मैं जब वहाँ गया उस समय वहाँ जो इंसर्जेंसी है अंतिम दौर पर थी। और जब 1986 में, कि उस समय तत्कालीन सरकार ने, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में एकॉर्ड होने के तुरंत बाद वहाँ इंसर्जेंसी नाम की कोई चीज नहीं रह गई। अभी किसी भी तरीके की वहाँ कोई इंसर्जेंसी नहीं है। छुटपुट सामाजिक घटनाएं जैसा अन्य प्रांतों में होती है वैसा होती रहती है। सो बिल्कुल एक बदलाव वाले माहौल सर तुसी उत्थे पहुंचे, जिथे मैं कोई नस्लवाद की गल नहीं कर रहा, पर कुदरत का एक रंग है कि उन्हां ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। तो एक ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी सी, उन्हां दी की प्रतिक्रिया हुई? चूंकि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय था और इस विश्वविद्यालय में उन दिनों 80% शिक्षक बाहर की हुआ करते जी। तो एक ये था, केवल 20% शिक्षक ही वहाँ के थे। दूसरा, जैसा कि मैं बोला, करीब 2 साल तक मैं इंसर्जेंसी पीरियड में वहां पर था, लेकिन वहां पर शिक्षकों का बहुत ज्यादा सम्मान अभी भी किया जाता है। इंसर्जेंसी के समय भी शिक्षकों को किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया गया। 1982 में
वहाँ पर डीजी थे हमारे रीवा जिले की, वहाँ पर डीजी थे, उनको ऑफिस में जाकर उनको गोली मार दी गई। लेकिन शिक्षकों को वो किसी भी तरह, चाहे बाहर का हो, कहीं किसी भी प्रांत का हो, शिक्षकों को बहुत सम्मान करते थे, किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते थे। तो इंसर्जेंसी के समय भी मुझे कोई नहीं हुआ। दूसरा, मेरे दादाजी से जो मैंने सीखा कि जहाँ जाओ, जहाँ रहो, जहाँ का खाओ वहाँ का बजाओ, ये मेरी दादाजी की मुझे सीख थी। तो जब मैं वहाँ पहुंचा और मुझे बहुत अच्छा लगा पहुंचने के बाद, तो मैं ये सोचा कि मैं अपना कैरियर यहीं डेवलप करूंगा और उसके लिए हमें उस समाज को समझना, उनकी मान्यताओं को समझना, मैं ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਛਵੀ ਬਣੀ, ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਔਰ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਸਲਾ ਸੀ? बहुत ज्यादा अंतर था। जो यहाँ सुनाई देता है और अभी भी वहाँ के बारे में, वो एक धरातल पर वो चीजें नहीं है, बहुत भिन्न है। हम चूंकि जानते नहीं है, वहाँ जाते नहीं है, उनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। पूर्वोत्तर भारत में डाइवर्सिटी, जैसा हम बोलते हैं कि अपने देश में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, उसमें पूर्वोत्तर भारत में बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है। असम में ही कम से कम 10-12 ट्राइबल ग्रुप है। नागालैंड में 17 तरह के अलग अलग ट्राइबल ग्रुप है। नागालैंड एक प्रांत है, हम उनको एक नागा बोल देते हैं, लेकिन उसमें 17 तरह के ट्राइबल्स हैं। उनका सबका अलग अलग कपड़ा है, शॉल और जो ट्रेडिशनल ड्रेस है सब अलग अलग है। और वो आपस में उनकी सबके लोकल डायलेक्ट अलग अलग है, ट्राइबल लैंग्वेज जो है। और जब आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते हैं, तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए वो उन्होंने अंगामी, जो हिंदी और असमीज का मिक्स है, वो भाषा की है, उस भाषा में बोलते हैं। बहुत ज्यादा वहां पर भिन्नता है। और ट्राइबल्स ग्रुप जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनके अपने इशूज थे। और जब हम उनको अपने रूप से ढालने की कोशिश के लिए तो ਰਿਵੋਲਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਸ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। तो ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ प्रेरिया? जी, इसमें सबसे पहले तो मैं मिजो भाषा सीखा, क्योंकि यदि हम किसी जगह में हैं, वहाँ की भाषा सीखते हैं, तो उससे जो हम कनेक्ट करते हैं वहाँ के लोगों को, उसमें बहुत सहूलियत होती है। तो हमने तो पहले मिजो भाषा स्वयं सीखा, पढ़ना भी, लिखना भी, बोलना भी। और फिर जो हमारे जो विद्यार्थी थे उसमें ज्यादातर मिजो थे, तो उनसे हम धीरे धीरे कुछ शब्द हिंदी का, उनसे जब मैं मिजो भाषा सीखता था, तो मिजो को पहले उनको इंग्लिश में उसका मतलब पूछता था, क्योंकि डायरेक्ट मतलब समझ में नहीं आएगा। तो पहले मिजो इंग्लिश में, और फिर मैं उनको हिंदी में बताता था कि हिंदी में इसका शब्द ये है। तो इस तरीके से, क्योंकि हम केवल हिंदी ही बताएंगे तो वो उसको बहुत ज्यादा एप्रिशिएट नहीं करेंगे। हम उसको मिजो के साथ जब कोरिलेट करेंगे कि इस मिजो शब्द की ये हिंदी ये है, तब उनको भी वो एप्रिशिएट करेंगे और उनको भी लगेगा कि हाँ, ये हमारी भाषा का हिंदी बना रहा है। कैसे हमें हिंदी का प्रसार करना है, कैसे उनको अपने साथ जोड़ना है, जो उनमें ये लगता है अभी भावना ये है कि वो अलग है। और उसकी बहुत सारी वजहों में से एक मुख्य वजह यह है कि हमने उनको अपना बनाने की कोशिश भी की, तो जिस स्तर की, जिस पैमाने पर कोशिश होनी चाहिए थी, उस पैमाने पर कोशिश हुई नहीं। तो इस तरीके से ये करके, और मैं ये देखा कि बाहर के जितने शिक्षक थे वो हमेशा बाहर कहीं न कहीं अप्लाई करते रहते थे कि कब कहीं यहाँ से निकल जाए। पंजाब से भी, यहाँ से परमजीत सिंह यहाँ से गए थे वहां पर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में, और वो 2 साल में यहाँ अप्लाई करके GNDU में, लेकिन मैं जाने के बाद कहीं भी एक बार भी नहीं अप्लाई किया। जी बिल्कुल, क्योंकि तुसी उत्थे ही अपना करियर बनाया और तुसी मिजोरम ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਹੋਮ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਡੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆਫੀਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਹਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਾਂ ਕੁਲਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ना तो है एक भाषा मेरी, ना मेरी एक जाति,
गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। अब तुम खुद ही फैसला कर लो, मैं किस सूबे वाला। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। अब तुम खुद ही फैसला कर लो, मैं किस सूबे वाला। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। धरती का मैं बेटा हूँ, उसके मौसम चार। जिस धरती का मैं बेटा हूँ, उसके मौसम चार। गर्मी सर्दी पतझड़ और अलबेली ऋतु बहार। जहाँ सवेरा गाता आए, रात बजाए सितार, रात बजाए सितार। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। अब तुम खुद ही फैसला कर लो, मैं किस सूबे वाला। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। पंछी जिसकी निस दिन लाखों कोस उड़ान। मैं वो पंछी जिसकी निस दिन लाखों कोस उड़ान। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गूंजे मेरी तान। देश विशाल है, देश विशाल है मेरा, जिसका नाम है हिंदुस्तान, नाम है हिंदुस्तान। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। अब तुम खुद ही फैसला कर लो, मैं किस सूबे वाला। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਘੁਵਿੰਦਰ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਲਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜੀ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਹੋ? ये तो बहुत किस्मत वालों के साथ ऐसा होता है और मैं बहुत ज्यादा किस्मत वाला था कि मैं उस विश्वविद्यालय का पहला विद्यार्थी जो उसी विश्वविद्यालय में कुलपति बना। इसके पहले उस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी उस विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं बना था। ये मैं पहला ऐसा उस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ जो वहीं पर कुलपति बना। हमारे यहाँ के विद्यार्थी दूसरी जगह कुलपति बने हैं, बहुत सारे बने हैं, लेकिन उसी विश्वविद्यालय में कोई नहीं बना। तो एक ये लगाव था कि मैं जहाँ से मैंने शिक्षा ग्रहण की है वहां पर अभी मुझे वापस करने का अवसर मिल गया। इसकी बहुत ज्यादा खुशी थी। एक खुशी ये थी। दूसरी खुशी ये थी कि मैं 32 साल तक लगातार अपने प्रांत से बाहर, अपने परिवार से बाहर था, तो उसका मुझे गम नहीं था, लेकिन ये था कि अपने विश्वविद्यालय जो हमारा अल्मा मैटर है उसकी सेवा करने के लिए मुझे अवसर मिला, और दूसरा मेरा क्षेत्र है, मैं जिस क्षेत्र में पैदा हुआ उस क्षेत्र की सेवा करने का मौका मिली। तो ये दोनों खुशियां मुझे इतना प्रेरित की कि मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ उस विश्वविद्यालय की सेवा करूं। बहुत ही पुराना विश्वविद्यालय है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना था, तो बहुत सारे भवन मैंने वहां नए बनाए, बहुत सारे प्रोग्राम्स वहां चलाए, बहुत सारे समाज सेवा का कार्य वहां पर किया, और उसके बाद मुझे गुरुओं के आशीर्वाद से यहाँ आने का ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਆਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਹਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਗੌਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਿਆ,
ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਸ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ मध्य प्रदेश ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ पेश आए? जब मैं विद्यार्थी था तो मैं शर्ट पैंट पहनता था, और जब मिजोरम गया तो काफी वर्षों तक शर्ट पैंट ही पहनता था। जी। लेकिन जब मैं फिर अपना कुछ इतिहास पढ़ा भारतवर्ष का, कुछ किताबें पढ़ी, तो वहां मुझे एक बात पढ़ने को ये मिली कि किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र का जो पहनावा है, खाना पीना है, रहन सहन है, वो एक बहुत लंबे समय के बाद वो प्रचलन में आई है। और प्रचलन में इसलिए आई है कि वहाँ के जलवायु के अनुकूल है, बिल्कुल, वहाँ के वातावरण के अनुकूल है। बिल्कुल। तो इस तरह का जो पहनावा, खाना पीना, जैसे आप देखें कि हमारे यहाँ ये प्रोटोकॉल था कि ठंड में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, गर्मी में क्या खाना है क्या नहीं खाना, बरसात में क्या खाना है नहीं खाना, ऋतु परिवर्तन में क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो ये इतना हमारा रिच कल्चर था। आज आप देखो कि पूरे उत्तर क्षेत्र में 12 महीने आपको एक ही तरीके का खाना मिलेगा, जो बिल्कुल जलवायु के अनुकूल नहीं है और हमारे जो परंपरा प्रचलन के प्रतिकूल है। तो ये जो टाई शर्ट पैंट, ये हमारे यहाँ ब्रिटेन से आया, इंग्लैंड से आया। इंग्लैंड में पहनना मजबूरी है, इतनी वहाँ ठंड पड़ती है, तो वहाँ 12 महीने शर्ट पैंट कोट पहनना, टाई लगाना मजबूरी है। हमारे यहाँ की जलवायु ऐसी अनुकूल नहीं है उस ड्रेस के, इसीलिए हमारे यहाँ आज से 2 पीढ़ी तक यही था। पंजाब में भी पहले यही था, अभी भी बहुत सारे लोग कुर्ता पजामा पंजाब में पहनते, क्योंकि जलवायु के अनुकूल है, ये हमें कंफर्ट देता है, पहला। और दूसरा ये कि हर एक देश की एक ब्रांड इमेज होती है। ब्रांड इमेज कैसे बनती है? वहाँ की संस्कृति से। तो हम अपने देश की ब्रांड इमेज को क्यों छोड़ें, और वो जबकि लाभदायक है, जलवायु के अनुकूल है, हमें स्वस्थ रखती है। हमें यहाँ ऐसा कपड़ा नहीं पहनना है कि गर्म देश है और ज्यादा गर्म होता रहे। तो सागर ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਗੌੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਤੇ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ? देखिए, पहले दिन मैं सागर में भी जब पहले ज्वाइन करने गया तो शर्ट पैंट कोट में गया था जी। यहाँ पर भी पहले दिन शर्ट पैंट कोट में आया हूँ, लेकिन दूसरे दिन मैं कुर्ता पजामा में आ गया हूँ। और वो इसलिए आवश्यक है कि फोटो विश्वविद्यालय की वेबसाइट को विदेशी लोग भी देखते हैं, और हमें अपने विदेशी बच्चों को, विदेश के से बच्चों को भी आकर्षित करना है। तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट में तो मेरी सूट वाली फोटो लगी है, यहाँ भी सागर में भी लगी थी, यहाँ भी लगी है। लेकिन मैं इसी ड्रेस में केवल विश्वविद्यालय में ही नहीं, मैं दिल्ली भी जाता हूँ मीटिंग में, तो यही ड्रेस में जाता हूँ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ भारतीय पहरावे च हुंदे हैं? मतलब ज्यादातर टाई बूट उदां दे हुंदे हैं? केवल मुझे आज तक 2 वाइस चांसलर ऐसे मिले हैं जो कि इस ड्रेस में आते हैं। एक जो महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, ये महाराष्ट्र में है वर्धा, वहां पर, और एक संस्कृत विश्वविद्यालय है दिल्ली में, उसके वाइस चांसलर प्रोफेसर पांडे, ये और मैं तीसरा, हम 3 लोग जो हैं। तो मेरे ख्याल बाकी लोग भी तुहानू पुछदे होंगे इस दे बारे के? हाँ, सभी लोग पूछते हैं। तो मैं बताया हूँ कि अपने यहाँ के जलवायु के अनुकूल है, दूसरा, और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, तो इसलिए मैं इसको। तो खैर, उत्तर पूर्व चों मध्य भारत च हुंदे हुंदे तुसी पहुंचे जी उत्तर पश्चिम दे विच, यानी पंजाब दे विच, और पंजाब दा भी दक्षिण पश्चिम जिहड़ा इलाका है बठिंडा, उत्थे सेंट्रल यूनीवर्सिटी दे कुलपति नियुक्त होने का तुहानू मौका मिलिया। ते जदों तुहानू ये सूचना मिलती है कि हुण मध्य प्रदेश तो तुसी पंजाब जा रहे हो और वो भी बठिंडा जा रहे हो, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੋਇੰਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਹਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਪਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ? ये 2017 में शायद, जब गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व, उस पर मैंने अपने विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान कराया था, इस प्रकाश पर्व पर, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में। और वहाँ के जो वक्ता थे, उन्होंने जो हमारे गुरु साहिबानों का जो योगदान है उसके बारे में उन्होंने चर्चा की, और उन्होंने करीब 1.5 घंटा वो लगातार बोले थे।
ये व्याख्यान मैं ही आयोजित करवाया था वहां पर। तो जब मैंने इन गुरु साहिबानों के योगदानों के बारे में मुझे उस समय पहली बार विस्तार से पता चला। आइडिया तो मुझे था, लेकिन विस्तार से उस दिन पता चला, तो मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। पहला बात ये। दूसरी बात ये कि जब आजकल विश्वविद्यालय, किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी के भी कुलपति के पद का विज्ञापन होता है और वहां अप्लाई करना पड़ता है, और अप्लाई करने के बाद कुछ लोगों को इंटरेक्शन के लिए, बातचीत के लिए बुलाया जाता है, और फिर उसके बाद फिर सर्च कमेटी कुछ नामों का पैनल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में सबमिट करती है। मेरी एक जिज्ञासा उसमें ਹੋਰ से ਸ਼ਾਂਤ नियुक्ति ਕਰੋ, होती है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁर्ते पजामे 'ਚ गए? कुर्ते पजामे में गया था। और मैं चूंकि अप्लाई किया तो सोचा था कि मैं बताया कि जो प्रकाश पर्व के बाद मुझे जो गुरु साहिबानों के योगदान का पता चला, तो मुझे लगा कि मुझे ऐसे क्षेत्र में जाकर के सेवा देनी चाहिए, इसलिए मैंने अप्लाई किया यहाँ के लिए। इंटरेक्शन में गया और फिर यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं बिल्कुल सहज रूप से यहाँ आ गया। ਚਲੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਜੀ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵਾਂਪਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦੀ ਹੋ ਕੁਝ ਨਵਾਂਪਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ। तो इत्तेफाकी के बनया कि लगभग 34 साल बाद एक नवी सिक्ख्या नीति है जिहड़ी केंद्र सरकार ने घोषित की, और उस नूं अमली रूप लियाण च या उस नूं लागू करन दे विच एक बहुत वड्डी जिम्मेवारी जिहड़ी तुहाडे मोढिਆਂ ते भी आई। और इस दा किन्ना क फीसद है जिहड़ा तुहानूं लगदा है कि तुहाडे कार्यकाल दे विच लागू हो जाऊगा पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी बठिंडा दे विच? जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें जो हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रमुख सुधार है, उसमें से एक है मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक एजुकेशन। पहला ये। दूसरा है एग्जिट मल्टीपल एंट्री। तीसरा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। फिर है शोध में सुधार, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शोध करना। और इसके बाद अनुभव युक्त और कौशल युक्त शिक्षा देना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप पर बल देना अपनी विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था में। ये मुख्य बदलाव जो हैं, इनमें से हम 2 बदलाव इसी साल से लागू कर रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम का और क्रेडिट ट्रांसफर, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ये दोनों परिवर्तन और ये बहुत ही दूरगामी परिणाम हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में देने वाले हैं। आप देखें कि गुरुकुलों में 16 विषय और 64 कलाएं सिखाई जाती थी, और ये सभी विषय पढ़ना कंपलसरी था। आज जैसे ऑप्शन नहीं है, आज जैसा ऑप्शन की 25 विषय हैं, उनमें से कोई आप 2 या 3 विषय लें ग्रेजुएशन में, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। 64 कलाएं, जो जीवन जीने के लिए जो कलाएं, जितनी भी जिस तरह के कौशल की आवश्यकता थी, सभी कौशलों को वहां पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। तो ये इस तरह की हमारी जो प्राचीन में और इवन मध्यकाल तक जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था थी, तो यदि हम विश्वविद्यालयों में कौशल युक्त शिक्षा दें तो सरकार को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट नहीं खोलना पड़े, केंद्र सरकार को, प्रांत सरकार को। आप देखें कि हमारे देश का जो एक सबसे बड़ा आत्मबल था, वो था समाज पोषित शिक्षा व्यवस्था। गुरुकुल कोई सरकारी व्यवस्था से नहीं चलते थे। यहाँ पर सरकार थी, राजा महाराजा थे, उनके द्वारा गुरुकुल नहीं संचालित होते। बिल्कुल, समाज द्वारा होते जी। मेरा एक सवाल इत्थे ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ लागू किया जाए? क्योंकि कई बार बदलाव है ना थोड़ी जी दिक्कत दिंदा है लोगों को। ये मानव की प्रवृत्ति है कि परिवर्तन का विरोध करना, रेजिस्टेंस फॉर चेंज। यस, क्योंकि हम जो कंफर्ट जोन में हैं आज, हम एक जिस तरह की व्यवस्था में अपने आप को ढाल लिए हैं, आदी हो चुके हैं, उससे निकल कर के दूसरी नई व्यवस्था में हमें फिर वहां एडजस्ट होने में समय लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसलिए मानव प्रवृत्ति ऐसा होती है, और ज्यादातर ये हमारे देश में है
कभी कभी समाचार पत्रों में भी नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में उसके विरोध में कुछ न कुछ बातें विषय सामने आते हैं। लेकिन ये मैं एक चीज बता दूं कि ये जितने भी ये परिवर्तन है ये अन्य देशों में ऑलरेडी लागू है। अभी हमारे यहाँ ये लागू हो रहे हैं। जैसे हम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा विषय है। इसमें मैं 1-2 मिनट आपका लूंगा इसको बताने के लिए। अभी क्या है, कोई भी विद्यार्थी की हमारे विश्वविद्यालय में मान लीजिए एडमिशन ले लिया, तो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है पढ़ने की, जो विषय हम पढ़ाते हैं केवल वही वो सीख सकता है। जो हमारे यहाँ शिक्षक है उन्हीं से सीख सकता है। लेकिन एकेडमिक बैंक क्रेडिट होने के बाद ये होगा कि हमारा जैसे पीजी प्रोग्राम 90 क्रेडिट का है, तो इसमें से 45 क्रेडिट वो हमारे यहाँ से अर्न करेगा और 45 क्रेडिट दूसरे विश्वविद्यालयों से कर सकता है ना। तो उसको कितनी ज्यादा फ्रीडम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो विषय हमारे यहाँ नहीं है वो दूसरे विश्वविद्यालय में उसको भी पढ़ सकता है। सदी ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਈ ਹੈ। तो ये एक ब्रॉड विजन हमारा है इस विश्वविद्यालय को विकसित करने का। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਡ ਔਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਿਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ, ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਔਰ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ किस तरह बयान करोगे? जब मैंने ये पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति के लिए जब मैं अप्लाई किया, उस समय मेरे जहान में 2-3 विषय बहुत प्रोमिनेंट थे। पहला ये कि मैं इस खासकर जो हमारा ये मालवा इलाका है वहां पर जिस तरह के इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, जो पानी की समस्या है, पानी में जो यूरेनियम, आर्सेनिक, फ्लोराइड ये बहुत अधिक मात्रा में है, जिससे कि यहाँ पर तरह तरह की बीमारियां हो रही। एक विषय ये था, चूंकि मैं जियोलॉजी विषय का हूँ और ये मेरे विषय का भाग है, इसलिए मैं यहाँ की इस समस्या से परिचित था। एक समस्या ही। दूसरा, यहाँ का जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है, इन 2 चीजों के लिए ये 2 चीजें थी कि इन 2 क्षेत्रों में ये दोनों मेरे विषय से संबंधित हैं। एक डायरेक्ट संबंधित है, एक इनडायरेक्टली संबंधित है। और तीसरा जो विषय था कि मिजोरम में भी बहुत सारे पंजाब से परिवार हैं, शिक्षक थे वहां पर, तो वहां उनसे इंटरेक्शन के बाद ये पता चलता था कि यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी बाहर पढ़ने जाते हैं और बहुत सारे तो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके माँ बाप भेज सकते हैं, उनकी इतनी कमाई है, लेकिन बहुत सारे अपनी संपत्ति बेच करके बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं क्योंकि उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ नहीं मिल पाती है। तो ये 3 विषय मुख्य विषय मेरे मन में थे। इन 3 समस्याओं का समाधान मैं यदि वहां जाके कर पाऊं तो ये मेरे लिए, मेरी तरफ से इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सेवा होगी। 2 उसमें हमने काम शुरू कर दिया है। यहाँ की पानी की समस्या के बारे में हम देश के अन्य संस्थानों के साथ मिल करके एक कोलैबोरेटिव रूप में इसका अध्ययन कर रहे हैं और इसका समाधान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ये तुरंत नहीं हो पाएगा, इसमें 4-5 साल का बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें इसकी पहले वजह जानना, क्या इसका सोर्स है, और फिर सोर्स जानना कितना कहाँ से आ रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, और फिर उसको कैसे चेक करना और इसका समाधान निकालना। तो ये थोड़ा सा 3-4 वर्ष का समय लगेगा, लेकिन हमने इसमें प्रयत्न चालू कर दिया। और तीसरा, हम एक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि यहाँ की जो विद्यार्थी बाहर जा रहे हैं, यहाँ का धन वहां खर्च कर रहे हैं, इससे पंजाब की इकोनॉमी में क्या अंतर पड़ रहा है, और इनके अनुकूल इन समस्याओं के समाधान करने हेतु और अन्य जो स्थानीय समस्याएं हैं, इन समाधानों को ढूंढने की, समस्याओं के समाधान को ढूंढने के लिए किस तरह की स्किल की आवश्यकता है, उस स्किल को अपने करिकुलम में इंटीग्रेट करना। तो ये एक ब्रॉड विजन हमारा है इस विश्वविद्यालय को विकसित करने का। सो ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਡ ਔਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਘੁਵਿੰਦਰ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ आकाशवाणी FM बठिंडा ਦੇ स्टूडियो 'ਚ पहुंचे, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने
अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम